So today we will discuss electrostatics of the conductor. Electrostatics of the conductor means conductor properties of conductor in electrostate. Property of conductor in electrostate. This is our topic. So electrostatic of conductor. Electrostatics of conductor. This is our topic. So, means properties of conductor in electrostatic field. Electrostatic. So पहला property. There is no net charge inside the conductor. Clear? There is no net charge inside the conductor. Means charge only resides on the surface, not in the bulk. This is the first property. इसका मतलब ये बाबू कि कोई ये ऑब्जेक्ट है and this is conductor, and if you are giving q charge to the conductor, so charge कहाँ आएगा बाबू? खाली सरफेस पे आएगा. तुम चार्ज वॉल्यूम ले जाकर छोड़ दो अंदर, तब भी वो सरफेस पे ही आ जाएगा. So this is the first property of conductor. क्लियर? अगर तुम होल करके फिर अंदर चार्ज रख दिया फिर भी वो बाहर आ जाएगा. सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is always zero. If there is a conductor and there is a q charge, so charge will only reside on the surface. Charge will only reside on. So today we are dealing about properties of conductor in the electrostatic field or electrostate. So second property क्या है? Electric field inside the conductor is always zero. Clear? So if there is a conductor and if you are giving the charge to the conductor Q, so charge will only reside on the surface. So there will be no any charge inside. There is no any charge inside. So E inside will be zero inside. Now if there is another conductor and this conductor is in electric field, this conductor is in electric field. Clear? इलेक्ट्रिक फील्ड में बाबू, तो कंडक्टर पे चार्ज दोगे तभी E क्या होगा? अंदर जीरो होगा. इस पे चार्ज नहीं दो, क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखो तब भी क्या होगा? E बाबू जीरो ही होगा. क्लियर? चार्ज दोगे तब भी E जीरो होगा. Other or you are putting the conductor in the electric field, then your again electric field inside the conductor will be zero. यानी उस पर चार्ज दो या उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज रिमेन्स जीरो. क्लियर? सो लिखो जल्दी, फिर आगे करता हूँ. ये बाबू कर लिया सबने? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? गुड. सो थर्ड प्रॉपर्टी. अच्छा, कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चेंज हो जाती है. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ओवर हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्लियर? ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है? व्हेन चार्ज इज इन मोशन. क्लियर? तो उसके केस में क्या होगा? प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो ओनली व्हेन you are dealing with electrostate. Clear? If you are dealing with electrodynamics, then there will be some electric field inside the conductor. Clear? तभी तो चार्ज फ्लो करेगा, मोशन में, then there will be a current. Clear? So electric field and total charge inside the conductor will be zero only in electrostate, not in electrodynamics. Keep this in mind. ऐसा नहीं कि एक ही रूल हर जगह चला रहे, परमार्थ समझिए. थर्ड प्रॉपर्टी, surface of conductor is
इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल surface and potential on the surface is equal to the potential inside the conductor। मतलब बाबू ये जो कंडक्टर है, सो देयर आर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, क्लियर। सो एंड देयर इज अ पॉइंट डी, सो दिस सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। So VA will be equal to VB is equal to VC, and this is the condition for equipotential surface. And also electric potential inside the conductor is equal to potential on the surface. So what VA is equal to VB is equal to VC is equal to VD. So this is from second statement and this is from first statement. This is due to equipotential surface, equipotential surface, and this is due to E is equal to 0 inside the conductor। अगर E 0 है तो background में 0, so potential inside and on the surface must be equal, clear। so यहाँ से clear। fourth property, electric field is always perpendicular to equipotential surface, perpendicular to conductor, क्लियर। कंडक्टर, तो अगर ये बाबू कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, हमेशा, क्लियर, हमेशा। या ऐसा कुछ है तो हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस होगा। here charge is positive and here charge is negative। इधर ओके, गॉट इट, क्लियर। सो करो, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, इधर का डायरेक्शन, क्लियर। करो जल्दी करो, कर लिया बाबू, कर लिया, गुड, ऑल गुड, कर लिया सबने, गुड। And the fifth one is surface charge density। is inversely proportional to radius of curvature। Yeah, this is the statement। मतलब बाबू कि ऐसा कुछ शेप है, मान लो ऐसा कुछ शेप है, क्लियर, ऐसा कुछ शेप है, and now we are giving a charge q and this q is positive and this is the conductor। so charge will reside on the surface ना, charge will reside on the surface। so होगा क्या बाबू, अब इसकी क्या है, इसका क्या है, इसका कर्वेचर क्या है, कम है, so यहाँ क्या है, रेडियस इज r, मान लो इसका रेडियस मान लो इधर वाला पोर्शन का r1 मान लो, इधर वाला पोर्शन का r2 मान लो। सो व्हाट योर r1 इज ग्रेटर देन r2, क्लियर, r2 क्लियर। इसका मतलब क्या, इसका रेडियस क्या है, ज्यादा, इसका क्या है, कम है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इधर ज्यादा होगा, यानी यहाँ चार्ज का पॉपुलेशन क्या होगा बाबू, बहुत ज्यादा होगा, क्लियर। और यहाँ चार्ज का पॉपुलेशन क्या होगा, बहुत कम होगा। इधर ओके। सो जहाँ पर कर्वेचर ज्यादा वहाँ पॉपुलेशन कम, यहाँ कर्वेचर क्या कम है तो पॉपुलेशन क्या होगा, यहाँ ज्यादा होगा, क्लियर। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा तो
इसका यूज होता है जैसे मान लो कि घर और बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें ऐसा कुछ हम लोग यूज करते हैं, ऐसा कुछ। क्लियर? जैसे बड़ी बड़ी घर बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग के ऊपर ऐसा लगा देंगे और इसको ग्राउंड कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू? ग्राउंड। तो होगा क्या कि मान लो कि बिजली जब वो लाइटनिंग जब होगा तो लाइटनिंग इज ड्यू टू चार्ज, मैं पढ़ाऊंगा लाइटनिंग इज ड्यू टू चार्ज पार्टिकल। क्लियर? बहुत ऊपर बहुत सारे चार्ज है। क्लियर? लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग होता है स्पार्क आएगा तो हो सकता है कि इंड्यूस हो जाए चार्ज, चार्ज में इंडक्शन इसमें भी हो जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक होता है कि देखते हो यहाँ से तुम्हें लाइट दिखाई देने लगता है, रेडिएशन टाइप की, इतना स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो। क्लियर? मैं पढ़ाऊंगा, मतलब समझ लो उसमें कोई चला जाएगा तो गायब हो जाएगा वैसे ही। क्लियर? एक चीज मैं क्लियर करूंगा, अगर गलती से भूल गया तो मुझे याद दिला देना, एंड दैट इज योर टास्क, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। तो पूछ लेना मेरे से बाद में, जब डायइलेक्ट्रिक्स पढ़ाऊंगा उसके बाद पूछ लेना। तो होगा क्या, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बहुत है, क्लाउड में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहते हैं, यहाँ क्या जब भी चार्ज इंड्यूस्ड ओवर हियर ना, अब चार्ज इंड्यूस्ड होगा तो होगा क्या, ऐसा तिकोना क्यों बनाते हैं? तिकोना इसलिए बनाएंगे कि यहाँ पर क्या होगा, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो लीक करना शुरू हो गया, यानी कि इधर से होकर कहाँ चला जाएगा, वो इधर से होकर ग्राउंड को चला जाएगा। तो अपने घर में, जैसे घर में भी तो रॉड वॉड लगे होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो क्या कोई इफेक्टेड नहीं होते हैं इससे। क्लियर? इसलिए यूज किया जाता है। क्लियर? सो व्हाट योर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या घटेगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, रेडियस ज्यादा है तो यहाँ डेंसिटी कम होगा, यहाँ रेडियस कम होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? क्लियर? एंड दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। क्लियर? इसको लिखो, फिर मैं एक और प्रॉपर्टी कराऊंगा। तब कर लिया सबने? ये करो इरेज, बोलो गुड। तुम लोग सोच रहे हो कि जो पढ़ाया वही तो डिस्कस कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं नया चीज भी बताने वाला हूँ। दिस इज द न्यू पॉइंट, दो प्रॉपर्टी, नया प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। वर्क्स एज सीड, ये कंडक्टर वर्क्स एज सीड, मतलब कंडक्टर सीड का काम करता है। सीड का मतलब क्या होता है कि किसी चीज से बताना। सील्डिंग इफेक्ट जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़े सील्डिंग इफेक्ट ना, या सील्ड होता है, जैसे सील्ड मतलब कॉच टाइप का कुछ बोलते हैं, जैसे मान लो कि सील्ड पहन लोगे तो वहां तक जो भी कुछ आएंगी निगेटिव एनर्जी या जो भी हो तुम्हें हार्म नहीं करेंगे। शील्ड का मतलब ये होता है। आर्य भाषा में शील्ड क्या होता है, मूवी में देखना शील्ड वर्ड यूज करते हैं, एवेंजर्स की मूवी देखो उसमें शील्ड यूज किया है। तो शील्ड समझ आ रहा है ना, शील्ड, शील्ड समझते हो ना, कवच, जो सुरक्षा कवच इसको बोल सकते हो, इसको भी ये प्रोटेक्शन शील्ड भी बोल सकते हो, सुरक्षा कवच है ये। कंडक्टर्स वर्क्स है सुरक्षा कवच, क्लियर, प्रोटेक्शन शील्ड। क्लियर? जैसे हम लोग गर्मियों में पहनते हैं ना स्वेटर, ठंड में क्या पहनते हैं, उलन क्लॉथ पहनते हैं, दैट वर्क्स एज अ शील्ड ना, दैट विल सेव फ्रॉम कोल्ड ना। क्लियर? आर्य बस में शील्ड का मतलब समझते हो कि नहीं, बोलो गुड। सो कंडक्टर आल्सो वर्क्स एज सुरक्षा कवच, दिस कंडक्टर आल्सो वर्क्स एज सुरक्षा कवच। कैसे देखो, होगा क्या कि इफ दिस इज अ कंडक्टर, मान लो ये कंडक्टर है और ये काट के निकाल दिया, सो दिस इज कैविटी। कंडक्टर वर्क्स एज शील्ड, कंडक्टर वर्क्स एज शील्ड। तो हो गया कि ये कंडक्टर लिया मैंने और कंडक्टर लिया और यहां से इतना काट के मैंने निकाल दिया, तो ये होलो हो गया, ये इसको कैविटी बोल देते हैं। होलो है, कैविटी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत, कैविटी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये कैविटी हो गया बाबू, ये होलो हो गया। ठीक है, अब क्या करना, मान लो देयर इज सेंसिटिव डिवाइस, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये रीडिंग वोडिंग दिखा रहा है, ये नॉब है उसके, क्लियर, और ये इसके स्विच है, दिस इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस। And this is very sensitive, very sensitive, क्लियर, वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव डिवाइस। थोड़ा सा भी अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होगा, जैसे मान लो कि इसके आसपास तुम अपना फोन लेके जाओगे या करंट जाएगा तो इसमें डिफेक्ट हो जाएगा। यू नो ये करंट का रिफ्लेक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मान लो यहाँ से करंट जा रहा है, एक वायर है, यहाँ से करंट जा रहा है, सो दिस विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और ये इसमें तो क्या होगा, इसमें भी इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। ये हो सकता है कि कहीं फ्रिक्शन हो रहा है तो चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो गया एंड दैट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तब भी डिफेक्टेड हो जाएगा, बिकॉज दिस इज वेरी सेंसिटिव। इट इज जैसे फोन और यूज करते टीवी, दे आर नॉट टू सेंसिटिव, है ना, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करोगे ना, जैसे करंट का होता है एम्पियर में भी होता है,
मिलीमीटर जैसे मल्टी करंट का मेजर करने के लिए एमीटर यूज करेंगे हम लोग ना। एक एमीटर होता है जो एम्पियर में करंट मेजर करता है, एक माइक्रो एम्पियर में करंट करता है। इसका मतलब क्या है 10 टू द पावर -6 एम्पियर ना। सो दिस डिवाइस इज वेरी सेंसिटिव ना, ये थोड़ा सा भी करंट को मेजर कर लेगा, इसमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इसमें तो बहुत 10 टू द पावर -6 है। क्लियर। तो ऐसे ऐसे डिवाइस होते हैं, लैब में जाओगे तो बहुत सारे सेंसिटिव डिवाइस होते हैं, उनको तुम इधर तो नहीं रख सकते हो। मान लो कि टेबल पर रख दिया या लैब में कहीं और रख दिया, तो थोड़ा सा कोई चेंजेस हुआ, मान लो मौसम का इधर उधर हुआ या हाई वोल्टेज आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, या कहीं से फ्रिक्शन हो गया वहां चार्ज प्रोड्यूस हो गया, सो दैट विल इफेक्ट दिस डिवाइस ना, क्योंकि वेरी सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से मिला तो ये इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर क्लियर इफेक्ट हो जाएगा। हो सकता है ये बहुत महंगा 1000 10,000 1 लाख का है, फिर वो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसको बचाना है बाहरी इफेक्ट से, यानी कि इसको बाहर के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करना है, यानी कि हमें इसको शील्ड लगाना, हमें ऐसा क्या करना है, शील्ड लगाना है कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या जो भी हो इलेक्ट्रिकल फेनोमेना का इसके इंपैक्ट ना पड़े। तो उसको क्या करेंगे हम, यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। तुम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो कंडक्टर को, या इस पे चार्ज दो। क्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज रिमेंस 0। तो अब इसको शील्ड के लिए क्या करना, सबसे बढ़िया शील्ड इस डिवाइस के लिए क्या होगा, कौन बताएगा। इसको शील्ड चाहिए, यानी कि इसको बाहरी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से क्या करना है, सेफ करना है इसको। तो क्या करना है, हम इसको शील्ड लगाएंगे इसके आसपास ना, तो शील्ड के तौर पे क्या लगा देंगे, इसको उठा के क्या करते हैं बाबू, कैविटी में डाल देंगे। इसको उठा करके कैविटी में डाल देंगे, यानी कि बड़ा सा कंडक्टर लेंगे और उसमें इस साइज का कैविटी बनाएंगे और उसको उठा के उसमें डाल देंगे। अब बाहर दुनिया में कुछ भी हो रहा है, 1000 वोल्ट जाए, 10,000 वोल्ट जाए, पावर प्लांट तक, पावर प्लांट में ही लेके चले जाओ, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि the property of conductor is what, there is no any electric field inside the conductor and also there is no any charge inside the conductor। चार्ज कुछ भी दोगे अंदर चार्ज नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर नहीं रहेगा। अगर चार्ज देते हो भी तो कहाँ आएगा, सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एंड चार्ज इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। फिर इसको सॉरी रिमेंस 0। तो इसको जब अंदर लाओगे तो इस पे बाहरी दुनिया का कोई इंपैक्ट होगा ही नहीं, एंड देयर इज नो एनी इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल चार्ज ऑन दिस इक्विपमेंट। Clear, and this is safe inside the conductor। Clear? Clear? क्या नॉन कंडक्टर में नहीं रख सकते हो, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा अंदर ना। नॉन कंडक्टर का इंसान में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता है। गॉट माय पॉइंट। सो योर कंडक्टर वर्क एज शील्ड। क्लियर। जो ये सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं उनको शील्ड करने के लिए यूज किया जाता है, बचाने के लिए यूज किया जाता है फॉर फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिनोमेना। आ रही बात समझ में, हमको आपको क्लियर हुआ पॉइंट्स, तो बोलो सब। बाकी के बच्चे क्लियर हुआ, कोई नहीं कर रहा, बाकी के बच्चे करो। गुड। तो लिखो एज शील्ड। गुड। And seventh one, we will find the electric field on the surface of conductor। Electric field on the surface of conductor। This is the clear. So what? This is a conductor। This is a conductor, and you know if you are giving Q is the charge, and you are giving charge Q to the conductor, so what? Charge distribution will be non-uniform ना, जहाँ पर कर्वेचर ज्यादा होगा वहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। क्लियर। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी non-uniform। क्लियर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, जहाँ पर कर्वेचर ज्यादा होगा पॉपुलेशन क्या होगा, वो ज्यादा होगा। क्लियर। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी non-uniform। चार्ज distribution will be non-uniform and means that is clear, sigma will be different at different place। अलग अलग प्लेस से सिग्मा क्या होगा, अलग अलग। and also electric field will be
different at different place. क्लियर, यानी कि हर पॉइंट पे या हर जगह पे यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा यहाँ, बट पोटेंशियल रिमेंस सेम, पोटेंशियल रिमेंस सेम ऑल ओवर द सरफेस. क्लियर, सही है. सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे. सो व्हाट, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सॉरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म, आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म. तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अलग अलग होना. तो वी विल चूज ए स्मॉल एलिमेंट एंड वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट एलिमेंट ना. क्लियर. तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे बाबू, मान लो ये ds एलिमेंट लिया. क्या लिया, सो ds, दिस इज द एरिया एलिमेंट, and since ds is very small, sigma on the ds surface can be assumed to be, बोलो, कांस्टेंट है. ds बहुत छोटा है तो यहाँ पर सिग्मा क्या सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं. नाउ वी विल यूज गॉस लॉ. सो गॉस लॉ इज इंटीग्रेशन e डॉट n ds इज इक्वल टू q इनसाइड अपॉन epsilon. This is the Gauss law ना, this is the Gauss law. So we'll apply Gauss law over here. तो इधर जल्दी लिख, उसके बाद कराता हूँ. कर लिए बाबू. So this is a ds element, area element, a small area element, ds, and sigma for these small element will be constant. Clear. So what, करो इसको. And in order to find the electric field on the surface, we will apply Gauss law of electricity, which is integration E dot n ds is equal to q inside upon epsilon naught. So we will apply this. So what, this is your surface and this is your ds element. So what, ds, this is ds and sigma is the charge density over here and ds is the area element, and then this is your Gauss law. Phi is equal to E dot n ds is equal to q inside upon epsilon naught. So what, first apply this E dot n ds. So and this is equal to what? So electric field, let us assume charge is positive. So what, charge is positive. So your electric field will be radially outward na, and also n cap will be in the same direction. So electric field E and E vector and n cap are in the same direction ना, बोलो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू चूज गॉसियन सरफेस ना यार. तो गॉसियन सरफेस हम क्या लेंगे, स्मॉल पिलबॉक्स लेंगे, स्मॉल गॉसियन, यानी कि विल चूज ए स्मॉल गॉसियन सरफेस. पिलबॉक्स समझते हो, जो माचिस का डिब्बी होता है वैसा कुछ पिलबॉक्स. क्लियर, माचिस की डिब्बी की तरह होता है, माचिस का जो मैच बॉक्स होता है उसको पिलबॉक्स भी बोल सकते हैं. तो पिलबॉक्स लेंगे, स्मॉल पिलबॉक्स लेंगे. इसका मतलब क्या होगा कि इसका एरिया यही होगा जो ds होगा इसका सरफेस का. द लेंथ, दिस लेंथ विल बी वेरी स्मॉल, यानी कि मतलब ये सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, तो इससे थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा अंदर, यानी ये ऐसा कुछ लेंगे हम लोग. क्लियर, बहुत छोटा लेते हैं पिल बॉक्स है कि नहीं, वेरी स्मॉल. क्लियर, तो होगा क्या, मतलब कि एज जो है ना इसका सिलेंडर, मान लो सिलिंड्रिकल है, इसका एज जो होगा क्या, दैट विल बी वेरी स्मॉल, थोड़ा सा बाहर और थोड़ा सा अंदर, क्योंकि बिकॉज़ वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ना, ऑन द सरफेस. सो व्हाट, दिस सरफेस विल बी जस्ट ऑन द सरफेस ना, जस्ट ऑन द सरफेस. Clear, and this will be just inside the surface. This will be just inside the surface. Clear, because the question is find electric field on the surface. तो ये ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, ये surface ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए. This should be just on the surface. So means your यानी length of the cylinder should be very small. Clear. So होगा क्या बाबू, so for this surface, अब गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो तीन पार्ट में डिवाइड करोगे ना, तीन पार्ट में, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस है, थर्ड. एंड दिस इज द फर्स्ट सरफेस ना, and this is second and this is the third. Clear. So there will be no electric field along this direction. इधर पर कोई electric field होगा क्या, कर्व सरफेस के अंदर, because your electric field is always normal to the surface. तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अच्छा यहाँ पर E क्या होगा, इस सरफेस के लिए क्या होगा, E 0 हो जाएगा. इसके लिए भी क्या होगा, E 0 हो जाएगा. इसके लिए क्या होगा, E नॉन जीरो होगा. So flux due to these two surfaces will be 0. Flux due to these two surfaces will be 0. Only contribution will be from first surface. फर्स्ट सरफेस. क्लियर, फर्स्ट सरफेस. या ये भी तुम बोल सकते हो कि फॉर दिस सेकंड सरफेस योर इलेक्ट्रिक फील्ड बी इन दिस डायरेक्शन, and normal to the curve will be in this direction. So again angle is
90 degree. So again from these second surface your flux will be 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं कर सकते. अंदर में देखो, अंदर में आधा है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन बाहर की बात करोगे तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा. क्लियर, परपेंडिकुलर सरफेस. क्लियर. और इस सरफेस पे टेंजेंट क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, इधर होगा. तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस इज 90 डिग्री. सरफेस मतलब ये वाला गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस आ रही बात समझ, थोड़ा सा जूम करो इसको यार. देखो ऐसा कुछ है तो ये गॉसियन सरफेस है. सो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना बाबू, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है. तो देयर आर 3 सरफेसेस 1 2 एंड 3. एक हो गया ये वाला, एक ये और ये कर्व. तो कर्व के लिए एन का इधर होगा ना, एन का बाहर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है. तो एंगल क्या है 90 डिग्री ना. So phi due to this one will be phi due to second surface will be 0, and again for this third one में क्या है बाबू, each 0 है ना, because this is inside the conductor. So inside the conductor electric field will be 0. So E 0 हो गया, तब phi क्या हो गया, यहाँ भी phi क्या हो गया 0. phi 3 भी क्योंकि E 0 हो गया. phi will be only due to this ना. So यहाँ लिख सकते हैं कि your phi 1 will be integration E dot n ds. और ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस आर इन दी सेम डायरेक्शन. आ रही बात समझ. तो होगा क्या, इंटीग्रेशन ई डीएस. क्लियर, इंटीग्रेशन ई डीएस. आ रही बात समझ, आ रही बात समझ. क्लियर. अब देखो होगा क्या, इंटीग्रेशन ई डीएस. सो ये जो इंटीग्रेट करोगे, ये पूरा इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा बाबू हमें, ये पूरा इंटीग्रेशन करोगे तो फाई क्या मिलेगा, ये फाई 1 है. इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, दिस विल गिव द फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस ना, whole surface. Clear, flux through the whole surface. But question is what? Question क्या है? We have to find the electric field on the surface. Clear? And you know, charge distribution is non-uniform. Charge distribution is non-uniform means your charge density will be different at different places, and also electric field is non-uniform. Electric field will be different at different places. तो हमको इस एरिया में फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे कि इसी एरिया के थ्रू फ्लक्स फाइंड करेंगे ना. So since your ds is very very small, your flux will be also वेरी वेरी स्मॉल ना, वेरी वेरी स्मॉल. तो ये क्या है कि फाई है वो इंटीग्रेशन ई डीएस. तो डी फाई क्या होगा बाबू, डी फाई विल बी सिंपली ई डीएस ना. तो अब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डीएस. क्लियर. सो हम यूज करेंगे डी फाई इज इक्वल टू ई डीएस. एक इक्वेशन ये. क्लियर. और ये अप्लाई करो, ये इसको अप्लाई करोगे क्या होगा, इसके लिए डी फाई क्या होगा, डी फाई from this equal d phi is equal to d q inside, यानी छोटा सा चार्ज वेरी स्मॉल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन. और d q इनसाइड क्या होगा, d q इनसाइड क्या होगा, सिग्मा इनटू ds ना अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज d phi and this is d phi. they must be equal ना, they must be equal. तो होगा क्या बाबू, इसको लिखो फिर करो. so this is your flux d phi which is sigma ds upon epsilon naught, and this is your flux d phi which is equal to e ds. so they must be equal, so करते हैं आगे. So d phi is equal to E dot ds is equal to d q inside upon epsilon naught. So what? d phi आया था बाबू E ds दूसरा, और एक d phi आया था, वो आया था sigma ds upon epsilon naught. So they must be equal to E ds must be equal to sigma ds upon epsilon naught. So ds से किया गया, E is equal to sigma upon epsilon naught. So this is the electric field. So E on the surface E is equal to sigma upon epsilon naught. Clear? So you know sigma will be different na, different at different place. So from this equation E will be also different at different place. यानी जिस पॉइंट पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट का चार्ज डेंसिटी लो एंड डिवाइड कर दो किससे, एप्सिलॉन नॉट से. यू कैन इजीली फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड. मान लो पॉइंट ए है, सो ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इफ दिस इज द पॉइंट बी और यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, देन ई बी इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट.
there is a point C and we want to find electric field at point C, so EC is equal to sigma C upon epsilon naught. Is that okay? So this is the procedure to find the electric field on the surface, which is equal to sigma upon epsilon. And also if your shape is unsymmetrical, their electric field and charge density will be different in different places. For symmetrical, charge density and electric field will be same. Clear? Keep this in mind. चलो देखो